Good morning, students. So today I'm here to discuss you about lesson number 6 of class 9, that is tissue. So before starting this, first you should know what do you mean by cell. Before starting this lesson, first cell. What do you mean by cell? In lesson number 5 of class 9, you studied about lesson number cell. Cell is what? Cell is the structural and functional unit of our life. Structural and functional unit है life का. Our body is made up of multi-cellular. कई सारे सेल से मिलके बनी है. कई unicellular bodies भी हैं. तो cell is the smallest unit of all the living organisms. Whether it is microorganism, whether they are plants, animals, birds, humans, all are composed of cells. सारी चीजें हमारी सेल से बनी all the living things in on this earth. So, cell is the basic structural and functional unit of life that we have discussed in lesson number 5. Now, tissue. What do you mean by tissue? Now you understood that cell. So, group of cells is known as the tissue. Group of cells is known as the tissues. कई सारे cells मिलके they form the tissue. कई सारे सेल्स में दैट डजंट मीन कि मैं एक प्लांट का सेल ले लूं, एक एनिमल का सेल ले लूं, एक मैं किसी बर्ड का सेल ले लूं, एक ह्यूमन बीइंग का सेल ले लूं और उन सेल को मिक्स कर दूं, क्लस्टर बना दूं और बोलूं दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स, सो दिस इज अ टिश्यू. नो, दैट इज नॉट द टिश्यू. टिश्यू के लिए पर्टिकुलरली हम डिफाइन करेंगे कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure, and which have the common origin. जो स्ट्रक्चर में सेम हो, जिनका ओरिजिन कॉमन हो, दे आर नोन एज द टिश्यू एंड विच परफॉर्म्स द सम पर्टिकुलर फंक्शन. वो टिश्यूज किस लिए क्रिएट होते हैं कि वो उन्हें एक पर्टिकुलर फंक्शन करना होता है. व्हाई द सेल्स आर क्रिएटिंग एंड फॉर्म्स द टिश्यूज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड कि व्हाट इज द यूटिलिटीज ऑफ टिश्यू, where they are using, where matlab we use this tissues. So tissues are the group of cells to perform a particular function. For example, in our body we have so many systems and the function of every system is different. For example, we have circulatory system. In circulatory system, the blood is pumping through the heart. पंपिंग हो रही है हार्ट की, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी. तो ब्लड के अंदर एक अलग टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है जिसका फंक्शन अलग है. बोन्स में देखें, मसल्स में देखें, आई कैन मूव दिस हैंड, मैं अपने हैंड्स को मूव कर पा रही हूँ, तो इसका फंक्शन डिफरेंट है. इसमें मसल सेल्स इन्वॉल्व है, टिश्यूज इन्वॉल्व है, मस्कुलर टिश्यूज इन्वॉल्व है, ब्रेन में सोचने के लिए नर्वस टिश्यूज इन्वॉल्व है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अलग टिश्यूज इन्वॉल्व है. एवरीवेयर द टिश्यूज, different types of tissues are there depending upon the functions of the tissues and where they are utilized as. So what do you mean by tissue? So how you can define the tissue? How will you define tissue? Tissue you can define, tissue is a group of cell. Tissue is a group of cells which are similar in structure, which are similar in structure and common origin. और common origin मतलब एक ही सोर्स से common origin and performs a particular function. ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेगा. ये नहीं कि सारे जो टिश्यूज हैं, हर टिश्यूज का अपना अपना फंक्शन है, हर टिश्यू अलग ग्रुप ऑफ सेल्स से बना हुआ है, तो हर टिश्यू का अपना अपना सिस्टम है. मल्टी सेलुलर जैसे हम लोगों की बॉडी है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं. We have so many different types of tissues. Plants में भी different types of tissues we have. So different types के. तो basically जो living organism जितने भी हैं, उनका जो basic smallest unit जो हम कह सकते हैं, that is your cell, and group of cells is known as the tissues. Group of tissues forms your organs, and group of organs form your organ system. एक organ का system बना देते हैं और उससे आपकी क्या होता है, पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है. सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड फुल बॉडी. This is the main criteria behind this tissues. So in this chapter we'll study about the plant tissues and animal tissues. As the name indicates that the plant tissues which are present in the plants and the animal tissues which are present in the animals.
So we classified these tissues. So first of all, I'll discuss about the plant tissues. First, I want to tell you this thing also. What is the basic difference between plant tissue and animal tissue? If you see carefully plants and animals, what is the basic difference you will observe? What will you observe? Will observe the plants, they are the fixed position. They have the fixed position. They cannot move from one place to another place. But human beings, we can move from one place to another. Why we can move? Because we need the food. We need for mate and for place to find out. हमें प्लेस भी चाहिए, सेफेस्ट प्लेस भी चाहिए, घूमना भी है, रिप्रोडक्शन के लिए भी, फॉर फाइंडिंग द मेट वी हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, बट प्लांट्स फिक्स है अपनी पोजीशन पे, वो मूव नहीं करते, राइट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज कि वो मूव नहीं करते, वो फिक्स होते हैं एंड एनिमल्स कैन मूव. तो बेसिकली उनमें जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज होंगे वो भी डिफरेंट होंगे. प्लांट टिश्यूज में कुछ ऐसे टिश्यूज होंगे जिन्हें मूव करने की नीड नहीं है, तो उनमें मोस्टली जो सेल्स होंगे, उन टिश्यूज के जो सेल्स होंगे दे आर डेड. एंड व्हाट अबाउट द एनिमल्स, वो मोस्टली जो सेल्स होंगे जिन टिश्यू से बने होंगे दे आर लिविंग. तो ये मेन चीज है कि प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए कि वो वहां पे खड़े रह सके. वो डेड सेल्स भी उन्हें स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. बट लिविंग थिंग्स में जो एनिमल्स है जिन्हें मूव करना है, उनको जो है ऐसे टिश्यूज चाहिए जो उनको मूव कराने में हेल्प कर सकते हैं. तो मेन जैसे अब मैं ये हैंड मूव कर पा रही हूँ, दिस इज ड्यू टू माय मस्कुलर टिश्यू. मैं सोच पा रही हूँ, मेरी ब्रेन तक मैसेजेस जा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द नर्वस टिश्यूज. ब्लड के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यूज. यहाँ पे जो बोन्स को ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर द कनेक्टिव टिश्यूज. So many tissues in our body present like this. Plants में भी so many functions, support का function चाहिए, photosynthesis का process चाहिए, support चाहिए, hardness चाहिए, plants की flexibility चाहिए. Plants में जो आप water दे रहे हो, वो water roots में जा रहा है, roots से वो पानी leaves तक जाने के लिए चाहिए, और जो प्रिपेयर्ड फूड है उसे डिफरेंट पार्ट्स में जाने के लिए चाहिए, तो उसमें टिश्यूज हेल्प करते हैं, राइट? सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लांट टिश्यू. आफ्टर दैट we'll discuss the animal tissue. So plant tissue is of two types. प्लांट टिश्यूज जो है वो आपके टू टाइप के. एक तो आपका हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, और एक आपका हो गया परमानेंट टिश्यू, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो नेम है इसका, दैट इंडिकेट्स डिवाइडिंग टिश्यू. इस टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं कि ये टिश्यू जो है डिवाइड होता रहता है. और परमानेंट टिश्यूज क्या टिश्यूज हैं? दे आर आल्सो, अर्लियर दे वर आल्सो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नाउ दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिविजन, डिवाइडिंग की कैपेसिटी लॉस कर दी है. पहले ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही थे. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवाइडिंग की कैपेसिटी लॉस हो जाती है, वो हमारे परमानेंट बन जाते हैं, उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो दे आर कैटेगराइज्ड अंडर द परमानेंट टिश्यू. एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द डिवाइडिंग टिश्यूज. ये डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड होते हैं. अब प्लांट्स में देखिए, उन्हें अपनी जगह से तो मूव करना नहीं, लेकिन उनको क्या चीज चाहिए? ग्रोथ. दे नीड द ग्रोथ. तो जो ग्रोथ है वो डिवाइडिंग टिश्यू की वजह से होती है कि एक सेल से दो, दो से तीन, इस तरह से सेल्स डिवाइड होते चले जाएंगे एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल टेक प्लेस. तो अब जो ग्रोथ ऑफ द प्लांट है वो एक तरह से नहीं होगी, वो भी कई तरह से ग्रोथ होगी. कि अगर कोई प्लांट की अगर आप ध्यान से देखिए, तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो सिर्फ ऐसे ऊपर नहीं बढ़ती, उसकी गर्थ भी बढ़ती है, उसकी मोटाई भी बढ़ती है, उसकी लेंथ भी बढ़ती है, उसके यहाँ से ब्रांचेस भी निकलती है, लीव्स भी निकलती है. तो ये सारा हमारा ग्रोथ का पार्ट है. तो वो जो सारा ग्रोथ रिलेटेड है, दिस इज द ग्रोथ टिश्यूज ऑल्सो. ये ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द डिवाइडिंग टिश्यू, जो डिवाइड कर करके ग्रोथ कराता है. इट इज ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स. ये आपका तीन टाइप का है. अब यहाँ पे ये जो थ्री टाइप का टिश्यूज है, इसमें हम इस तरह से इसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे. इट इज ऑफ थ्री टाइप, राइट? सो थ्री टाइप्स में हम इसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे. अपेक्स, ये जो है अपेक्स मींस एट द टिप. अपेक्स का मतलब होता है टिप. तो यहाँ पे जो टिप पे प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं अपाइकल मेरिस्टेम. अपाइकल मेरिस्टेम मींस व्हिच इज प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द रूट एंड स्टेम. रूट और स्टेम के टिप पे ये प्रेजेंट होता है, जहाँ पे की ग्रोथ होती रहती है लेंथ वाइज. ये लेंथ वाइज ग्रोथ करता है. So this is known as the apical meristem.
उसके बाद जो उसकी गिर्थ है, जो गर्थ और जो उसकी मोटाई है, जो उसकी चौड़ाई है, दैट इज योर लेटरल मेरिस्टेम। वो जो है आपका लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है करता है, जिससे कि इसकी गिर्थ बढ़ रही है, चौड़ाई मोटाई बढ़ रही है। नाउ नेक्स्ट इज योर, यहाँ पे आता है इंटरकैली। The last one, there are three types of these tissues. The next one is intercalary meristem. Intercalary जो कि यहाँ पे नोड्स पे प्रेजेंट होता है। नोड्स पे प्रेजेंट होने से जो इसकी ब्रांचेस है वो डेवलप होती हैं, ब्रांचेस बढ़ती हैं, जो इस तरह से साइड वाइज ये बढ़ रहा है स्टेम से, दैट इज योर इंटरकैली मेरिस्टेम। तो प्लांट की ग्रोथ हमने देखा कि एक टाइप में नहीं है, दैट इज दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज which is the dividing tissues which help in the growth. It is of three types. आपका एपिकल मेरिस्टेम, lateral meristem and intercalary meristem. Apical meristem, where it is present at the tip of the root and stem where growth takes place lengthwise. And lateral meristem, it is present at this side, center of this, and it helps in the widening of the plant, or we can say growth of the plant increase. Intercalary, it is present at the internodes and it helps in the branches, leaves, all these intercalary in the. So this is the meristematic tissue, apical, lateral and intercalary, three types of these. Now I will talk about permanent tissues. So what do you mean by permanent tissues? In plant tissues, we have permanent tissues also. Permanent tissues. Permanent tissues are those tissues which have lost the dividing capacity. जो कि dividing capacity lost कर चुके हैं and they now form the permanent tissue. और वो permanent tissues बन चुके हैं because they have lost the dividing capacity. So it is also of two types. What are these two types? These are simple permanent tissue and complex permanent tissues. These are simple permanent tissues and complex permanent tissues. Simple, again, simple as the name indicates, the simple and complex means complicated, difficult, मुश्किल आ गई complicated में. So simple means which is made up of only one type of cells, जो सिर्फ one type of cell से बना, one type of cell. And complex is more than one type of cell, more than one type of cell. Complex is more than one type of cells and simple is made up of only one type of cells. They are known as the simple tissues. Simple tissues are also three types. Simple tissues भी हमारे तीन तरह की हैं. कौन से three types हैं? First is your parenchyma. Second is your collenchyma. Third is your sclerenchyma. स्टूडेंट जिसे ऐसे बोलते हैं पेरेंट की माँ, कॉलन की माँ, स्क्लेरन की माँ, बट वो तो उनका लर्निंग मेथड है. सो थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज प्रेजेंट है होते हैं परमानेंट टिश्यूज में, पेरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज टिश्यूज? पेरेंकाइमा फंक्शंस प्रोवाइड्स द सपोर्ट ऑफ द प्लांट्स, सपोर्ट देते हैं उससे, जो सपोर्ट होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, दैट प्रोवाइड्स. एंड दे आर आल्सो प्रोवाइड्स द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी इसके अंदर होता है, जिससे कि ये फूड इसके अंदर स्टोर होता है इन टिश्यूज के अंदर. पैरेंकाइमा टिश्यू के अंदर फूड स्टोर होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. इस पैरेंकाइमा टिश्यू के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एज ऑल ऑफ यू नो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोर थिंग्स. एक तो सनलाइट, carbon dioxide, water, and chlorophyll. And that chlorophyll is present in parenchyma tissue and which helps in the photosynthesis process. And food is prepared and stored in this parenchyma tissue. So food stored hota hai. Second, they provide the support and strength to the plants. Second, collenchyma tissue. Collenchyma tissue तो flexi, जैसे अब आपने देखा है मेरी फिंगर फ्लेक्सिबल है ना. जितने भी मॉडल ऐसे प्लांट्स के भी कई पार्ट्स होते हैं विच आर वेरी फ्लेक्सिबल, कि आप उसे जितना भी बेंड करो वो ब्रेक नहीं होती. तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट्स के अंदर, दैट इज ड्यू टू योर collenchyma tissue. Now next is the sclerenchyma tissue. Sclerenchyma tissue, the hardness of the, तो बहुत ही हार्डनेस है, जो उसकी स्टिफनेस है,
जैसे आपने देखा होगा हस्क ऑफ द कोकोनट, जो कोकोनट के बाहर वो भूसा सा हस्क जो उसका होता है, इन दैट स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। बहुत ही जो हार्डनेस का काम होता है फाइबर्स का, वो हमारा स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू देता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि which tissue is present in the husk of the coconut? So the answer is sclerenchymatous tissue is present in the husk of the coconut. Sclerenchymatous tissue. तो ये सिंपल टिश्यूज हो गए विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ again two types of tissues, more than in this tissue more than one type of cells. So इसका हम first is your xylem, first is your xylem, second is your phloem, सेकेंड इसमें है हमारा फ्लोएम। अब दोनों के क्या फंक्शन होते हैं? जाइलम जो है, जाइलम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स, टू द लीव्स, ब्रांचेस, एवरीथिंग। जाइलम क्या करता है? रूट से पानी और मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफर कराता है फ्रॉम रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, वेदर इट इज अ लीव, वेदर इट्स अ स्टेम, ब्रांचेस, एवरीवेयर। And what about the phloem? This is some students pronounce like this phloem. This is not a phloem. This is the phloem. Phloem. अब what is the function of this phloem? Phloem function is the prepared food. जो green part में फूड प्रिपेयर होता है, जो भी जो प्लांट्स का ग्रीन पार्ट होता है, लीव्स वगैरह, उसके अंदर फूड प्रिपेयर होता है, बिकॉज इन ग्रीन पार्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। तो वो जो ग्रीन पार्ट के अंदर प्रिपेयर्ड फूड है उसे नॉन ग्रीन पार्ट्स में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। So these are two, xylem and phloem. So this is over for today. I'm just revising what you have done in this chapter. First we have done cell. Cell is what? Cell is the basic structural and functional unit of life, and it is the smallest unit of all living organisms, whether it is a plant, animal, microorganism, birds, anything. Right? And tissue is a group of cells that are similar in structure and that have the common origin and which perform a particular function. एक particular function करते हैं, they are known as the tissues. So what is the utility of tissues in multicellular organism? Multicellular में we have so many tissues. We have the connective tissues in the blood. We have the nervous tissue in our brain. तो ये सारे मैसेजेस जो है ट्रांसफर करता है। टिश्यूज के डिफरेंट डिफरेंट है। इन मूवमेंट वी आर यूजिंग द मस्कुलर टिश्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर देयर, राइट? एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टिश्यूज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में मोस्टली जो टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव टू मूव, दे आर द फिक्स्ड। एंड इन एनिमल टिश्यू मोस्टली जो सेल्स होते हैं टिश्यूज के वो लिविंग। प्लांट टिश्यूज में टिश्यूज आगे दो तरह का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडिंग टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इट इज अगेन ऑफ थ्री टाइप, दैट इज योर apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Apical meristem helps in the length of the growth, and the lateral meristem girth of the plant, and intercalary at the side branches. Now next is permanent tissues. Permanent tissues are again two types, and these are earlier they were also the meristematic tissue. Now they have lost the chemistry to divide. Now permanent tissues are of two types: simple tissues and complex tissue. Simple tissues which are made up of only one kind of cells, and complex tissues which are made up of more than one type of cells. In simple tissues, again we have the three types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, all having the different functions. And in complex tissues, we have two types of tissue, xylem and phloem. So thank you. आप इसे आज read कीजिए. In the next class, we'll study about the animal tissues, types of animal tissues. Thank you, dear students.